a new subject for class 9, social study. In social study, I am going to start history, first chapter, the French Revolution. This chapter deals the great event of the history, which is not only brought a great change in the French society, but also it is a very changeable factor for the whole world. First of all, we should know what is the revolution. What is the revolution and why did it happen? Revolution means gathering of people, gathering of a lot of people, a large number of people to brought a political change, a big political change, and it is also a way to brought a change in a very short span of time, because in this time is very low and very minute time has been collapsed in such type of activities. And to better understanding of the French Revolution, we have to know the French society before the revolution. What kind of that? Why did the French Revolution happen? This is a very important question also. And who was the king of France at the time of French Revolution? Cause of revolution? What was the society of France before revolution? And reasons of revolutions, why it has happened, whatsoever. These are all the main points of this chapter. It is not the whole chapter, but a glimpse of the beginning of this chapter, and also the glimpse of the society of France before French Revolution. At the time, the French Revolution, before this incident happened, before this incident occurred, who was the king of France? So the king of France was King Louis XVI. Louis XVI was the king of France at the time of French Revolution, and he was appointed as a king. He was enthroned on the throne of the France in 1774, and he also was married in a very early age of 20 with an Austrian princess. When he was enthroned, जब इसको राजगद्दी पर बिठाया गया तो इसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 20 वर्ष का था, और उसी वक्त इसकी शादी भी कर दी गई एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी से। लेकिन जब ये बैठा वहाँ पर, तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी ट्रेजरी, इट मीन्स उसका ख़जाना। लेकिन जब किंग लुइस शासनात्मक रूप से गद्दी पर बैठा, यानी इंथ्रोन हुआ, ही वॉज बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, एट दैट टाइम द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, एंड इज़ अ very crucial moment for that, because without treasure no government could survive easily, and for this reason he was tense and what was to do. So, and the most important thing, the reason of treasury empty. This is a very important question, कि what was the reason of the treasures emptiness, कि शाही ख़जाना खाली क्यों था, इसका क्या रीज़न था। तो शाही ख़जाने के खाली होने का रीज़न मैं आपको यहाँ पे दिया, और वही बाद में रीज़न बना
फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे पहला रीज़न है वॉर। फ्रांस उस वक्त एक डेवलपिंग सिटी थी, एक अच्छी पावरफुल कंट्री मानी जाती थी, तो ये हमेशा अपने आप को वॉर में इसलिए इंडल्ज करती रहती थी, लगाई रहती थी। और वॉर में लगने की वजह से बहुत सारे पैसे की खर्च होती है। आपको मालूम है कि वॉर में जाने के लिए हमें वीपन्स की ज़रूरत होगी, एम्यूनिशंस की ज़रूरत होगी, और भी तरह तरह के हथियारों की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। और वो वीपन्स उसमें जब यूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, बहुत बड़ा खर्च तैयार करेगा। तो ये चाहते थे कि हम अदर कंट्रीज़ पर भी अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत कर सकें, अपने प्रभाव को मजबूत कर सकें, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू अपने आप को वॉर में शामिल करते। दूसरी चीज़ थी पैलेस इन पर्सनेज। अब ये चूँकि शाही राजतांत्रिक मोनार्की सिस्टम था, तो मोनार्की सिस्टम में पैलेसेस मेन होते थे, और बड़े बड़े पैलेसेस को मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी पैसे की ज़रूरत। और यहाँ ट्रेजर इम्पटी है, और पैलेस के मेंटेनेंस भी चाहिए। अब वो मेंटेनेंस हो कहाँ से, ये एक रीज़न आया। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न आया है वो अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्री कराना ब्रिटेन से। ब्रिटेन और अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी, कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अमेरिका से इन्होंने थोड़ा सा फ्रेंडशिप करने के बाद अमेरिका को ब्रिटेन के रूल से फ्री करा, इंडिपेंडेंट कराने के लिए इन्होंने उनकी हेल्प की। जस्ट लाइक इंडिया वॉज अंडर रूल ऑफ ब्रिटेन, इन द सेम वे ब्रिटेन ऑल्सो रूल्ड ओवर अमेरिका in this period. In this period, America was ruled by Britain. So France came ahead to make American colonies free from Britain, and it is not only one or two colonies. It is near about 13 colonies. इन सारी कॉलोनीज़ को फ्री कराने में इसको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, और इस इन्वेस्टमेंट में ये बहुत बड़ा लोन लिया अदर लोगों से, अदर कंट्रीज से, और उसके बाद इस लोन पर इसको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ा, जो बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी पूंजी, बहुत बड़ा इनकी मनी उस पर स्पेंड होने लगी। ये तो रहा एक्स्ट्रा एक्सपेंड, और जो सबसे बड़ी चीज़ आई उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर का मीन्स यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट के जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, जो गवर्नमेंट चलाने के लिए और दूसरे खर्चे होते हैं, और दूसरी चीज़ें के ऊपर हमें मनी को पे करना होता है, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को, अपनी जितने भी हमारे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जितने भी पैसे की ज़रूरत हो वो सब अदर एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं। तो इतना बड़ा बर्डन पहुँचा लुईस 16 के रूल्स में, और वहाँ पर होगा क्या कि किंग लुईस का ट्रेजर बिल्कुल खाली, और ये सारे एक्सपेंडिचर का सर पे सवार होना। अब ये करे तो क्या करे, ये इस वक्त टेंशन। तो इसने क्या किया कि एक्स्ट्रा टैक्सेस बढ़ाना शुरू हुआ। और टैक्सेस किस तरह से बढ़े, किन के ऊपर बढ़े, कौन बढ़ाया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। फिलहाल इसके लिए अभी इतना वीडियो आप लोग इतना समझिए कि 1774 में किंग लुईस 16 फ्रांस के राजा बने, और वो अगली एज पर मैरिड हुआ। मैरिड किससे हुआ, एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी से, जो ये उस वक्त 20 वर्ष के थे। तीसरी चीज़ ये था कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का होने का रीज़न क्या था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के रीज़न ये सारे आए। इसकी वजह से हमारी कंडीशन क्या हुई, अब इसका आप पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द सोसाइटी बिफोर फ्रांस, फ्रांस के बाद पहले की, उस वक्त रेवोल्यूशन के पहले की सोसाइटी क्या थी फ्रांस की। तो जब हम इसको पूरी तरह से स्टडी करेंगे, थोड़ा सा भी हमें पीछे भी जाना पड़ेगा, और तब स्टडी करेंगे अच्छे से और फिर जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।